Hello friends, our today's session is on the example based on signals. Okay, so before going to start, let's see what we have done up till now. So up till now we have classify the signals, what is signal and system, and then we have classify the signals. Okay, that we have already covered in our last two sessions. Okay, that you can see here. So we have classified the signals on the basis of that behavior. So these are the classification of the signals. Mainly we have two types of signal. That first is a continuous time and then we have a discrete time signals, and then we have the signals periodic and non-periodic, then causal, non-causal, determination and random signal, even and odd signal, then power signal and energy signals. Okay, they all are classified accordingly some conditions, and that we have already since. Let's say some examples. So this is a continuous and a discrete form that we know. Then we have defined periodic and non-periodic. So this is the condition for a periodic. Okay, कि भी सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं, हाउ वी कैन नो. सो इफ़ यू सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस टी ज़ीरो, देन signal is periodic, you can say. Okay, and if it is not satisfied, then you can say it's a non-periodic signal. Okay, that there. So theory portion of this we have done. So this is for non-periodic, and same thing for a discrete. Okay, so for a continuous signal and for a discrete signal we have defined periodic and non-periodic. Same thing for causal, non-causal. Okay, so these are some conditions for causal and causals. Okay, so that we have defined. Then random and determination signals. Then we have, so this one we can say IMP one, we say even and odd. So mostly examples are on the basis of odd and even, and that power signal and energy signals. Okay, so these are some conditions for even signals. So you can say if a xt equal to x minus t, that signal is known as an even signal. But if it is xt equal to minus x minus xt, that signal is known as a odd signal. Okay, so how it look like? So it's your odd signal. अगर इनपुट इस तरह होगा तो आउटपुट कुछ इस तरह मिलेगा. ओके, सेम वे इनपुट इस तरह होगा तो आउटपुट इस तरह मिलेगा. ये ऑड में है. इवन में क्या है? ओके, इस तरह मिल रहा है. ओके, इस तरह, मतलब यहाँ इनपुट दोगे तो आउटपुट इस तरह में ऑपोजिट. ओके, सिमेट्रिकल है एक्सिस से, यहाँ सिमेट्रिकल एक्सिस पे है. यहाँ देखो सिमेट्रिकल नहीं है, ये इस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, आउटपुट हमें इस क्वाड्रेंट में मिल रहा है. इस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, आउटपुट यहाँ इस क्वाड्रेंट में मिल रहा है. सो एंटी सिमेट्रिक is there in even, and in odd we have a symmetrical signal. Okay, so for that mathematically how you can know, this is the equation for that. Okay, so that thing we have already defined. Okay, so here some more example for discrete form is there. Okay, so that we have already. Then this is a power signal and energy signal. Okay, some standard equations are there to define the energy signal and power signals. Okay, so that we have already covered in last to last session. Then we have defined some basic standard signals. Okay, DC signals, ramp unit signals, ramp signals, impulse signal is there, sinusoidal signal is there, exponential signal is there. Okay, so that we have already defined in last session. So today we will see some example on the basis of signals, how we can conclude that this signal is given signal is periodic or non-periodic, if equation is there. Okay, by figure you can directly see it's a periodic or non-periodic, but if it is equation is there, okay, how you can say. Okay, so here some theory portion is there to define the signal is periodic or not. So here condition for a periodic of discrete signal I have defined. So we know the condition of periodic, that we know कि भी सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? इफ़ द सिग्नल इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट सिग्नल. So I have written x n plus capital N equal to x n. अगर
कंटिन्यूस सिग्नल होगा तो यहाँ t प्लस टी ज़ीरो हो जाएगा. सो एक्स टी प्लस टी ज़ीरो एक्स टी प्लस टी ज़ीरो इज़ देयर. So that is a continuous signal, but ये discrete form है, that's why xn is there. So condition हम डिफाइंड करते हैं कि अब if it is equation is there, so क्या conditions डिफाइंड होगी. So let's say cosine wave is there, so standard equation xn equal to a cos omega n plus some phase difference is then phi, theta is there. Okay, so a is amplitude and theta is your phase shift. Now let's put the condition x n plus n capital N. So put the value of n plus capital N. एक्स एन की जगह हम पुट करते हैं एक्स एन प्लस कैपिटल एन. सो इक्वेशन क्या होगा, ए कॉस 2 पाई एफ एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा. ओके, थीटा. ओके, सो accordingly to the condition of periodically equation this 1.36. okay, we can equate equation 1.37 okay and 1.38. okay, इसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ. ओके, सो a cos 2 पाई n plus n plus theta equal to this equation. So we can write this equation directly. अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कौंस को हम निकाल देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह मिलेगा. सो ये इक्वेशन इस तरह है और ये cos 2 पाई f0n प्लस थीटा, इस ये इक्वेशन को हमने ये इक्वेशन के साथ कंपेयर किया हुआ है. ओके, सो फाइनली टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन आई कैन राइट जो इसमें एक्स्ट्रा जो पोर्शन मिल रहा है, दैट इज़ 2 पाई एफ एन 2 पाई एफ ज़ीरो कैपिटल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेर 2 पाई के. ओके, सो फाइनली आई कैन राइट एफ ज़ीरो इक्वल टू के बाई एन. ओके, सो where k is some constant value and n is some value, so I can write this is some rational number. Okay, so I can say if in this type of equation if f0 equal to some ratio and that ratio is some rational number. Okay, if ratio is the form of some rational number, so that signal is periodic. Okay, that we can say. Okay, so we can directly say from this. One more condition is that to satisfy the signal is periodic or not periodic. Okay, now if two signals are there, that is in the form of some summation. Okay, so here we have already defined that f0 equal to k upon n. So for a two signal, for say x1 is x1n and another is x2n, so for x1n to satisfy the condition I can write f1 equal to k1 upon n1 and for second signal f2 equal to k2 upon n2. Okay, now to decide the signal, this signal is periodic or not, if the ratio of this f1 upon f2, that finally we can say t1 upon t2. Okay, if t1 upon t2 is a rational number, t1 upon t2 is a rational number or some ratio up to integer value, then we can say this signal is periodic. Okay, so this is a theory portion we can say. Okay, so this is one more condition we can say. एक तो हमारे पास ये condition तो थी और ये दूसरी condition आ गई कि भाई कोई इक्वेशन फॉर्म में आपको सिग्नल्स दिया हुआ है. सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो यू कैन डायरेक्टली से द सिग्नल इज पीरियोडिक. ओके, सो हाउ we can say, so let's say example on the basis of this so you can more clarify. Okay, so let's say now here given that prove the sine wave show in the figure, this is a figure is a periodic. आप प्रूव करो कि ये पीरियोडिक, हमें पता है कि ये पीरियोडिक है बट मैथमेटिकली लेट्स प्रूव इट. सो कंडीशन हमारे पास है कि भाई अगर एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस टी ज़ीरो हो जाएगा, सो दिस सिग्नल इज़ पीरियोडिक, वी नो. ओके, सो एक्स टी हमारा क्या है, एक्स टी साइनोसोडियल है, तो एक्स टी इक्वल टू ए कॉस साइन ओमेगा ज़ीरो टी. ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वेव फॉर्म का. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू टी प्लस टी ज़ीरो. ओके,
सो एक्स टी प्लस टी ज़ीरो इक्वल टू, आई कैन राइट ए साइन ओमेगा टी टी प्लस टी ज़ीरो। यहाँ मैंने टी की जगह टी प्लस टी ज़ीरो लिया हुआ है। ओके, सो ये कुछ इक्वेशन इस तरह होगा, ए साइन ओमेगा टी यहाँ मल्टीप्लाई होगा टी प्लस ओमेगा जरा टी ज़ीरो। ओके, नाउ बट वी नो ओमेगा ज़ीरो इक्वल टू 2 पाई एफ ज़ीरो एंड टी ज़ीरो इक्वल टू 1/f0. सो ओमेगा टी ज़ीरो इक्वल टू 2 पाई f0. सो फाइनली यहाँ मैंने वैल्यू रखा हुआ है यहाँ ओमेगा ज़ीरो की 2 पाई f0. अब f0 तो मुझे पता है कि भाई वो तो f0 इक्वल टू 1/t0 हो जाएगा। तो फाइनली t0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन में ये निकल जाएगा। खाली यहाँ क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा, तो ओमेगा ज़ीरो प्लस 2 पाई रहेगा। तो एक्स टी प्लस टी ज़ीरो इक्वल टू ए साइन ओमेगा ज़ीरो स्मॉल टी प्लस 2 पाई, ओनली 2 पाई बचेगा, t0 तो 1/f0 के फॉर्म में कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ एक्सटेंड टू द सिग्नल, अगर ये इक्वेशन को अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ओके, तो आई कैन राइट साइन की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्म इक्वेशन यहाँ अप्लाई करें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन ओमेगा ज़ीरो टी इंटू कॉस 2 पाई प्लस कॉस ओमेगा ज़ीरो टी साइन 2 पाई। ओके, यहाँ इक्वेशन यूज़ किया है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, सो हियर कॉस 2 पाई की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 1 एंड साइन 2 पाई की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 0। सो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। सो फाइनली बचेगा कौन सा वाला पोर्शन, ये, इसमें कॉस 2 पाई 1 हो जाएगा, तो साइन ओमेगा ज़ीरो टी, तो एक्स टी प्लस टी ज़ीरो की वैल्यू क्या आई, ए साइन ओमेगा ज़ीरो टी एंड दैट इज़ इक्वल टू एक्स टी, वो तो एक्स टी की भी वैल्यू है। ओके, एक्स टी प्लस टी ज़ीरो इक्वल टू ए साइन ओमेगा ज़ीरो टी एंड दैट इज इक्वल टू, सो आई कैन से कि एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस टी ज़ीरो हो रहा है। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो द गिवन फिगर और गिवन वेव फॉर्म दैट इज़ अ पीरियोडिक। ओके, ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है। ओके, लेट्स से वन मोर एग्जांपल, नाउ प्रूव द एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक। ये नॉन पीरियोडिक है, हमें प्रूव करना है। ओके, सो इक्वेशंस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इक्वेशन इस तरह का होता क्या है, गिवन है एक्स टी इक्वल टू ई रेस टू माइनस अल्फ़ा टी। ओके, ई रेस टू माइनस अल्फ़ा टी दैट इज़ गिवन। ओके, ओके, रेंज इज़ गिवन। ओके, यहाँ इन्फिनिटी फॉर्म में जा रहा है टी ज़ीरो की, यहाँ टच नहीं होगा। ओके, तो टाइम दैट इज़ इन्फिनिटी, वी कैन से इन्फिनिटी फॉर्म में जाएगा। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू टी इक्वल टू टी प्लस टी ज़ीरो। तो अगर हम यहाँ रखें x इक्वल टू, इक्वेशन क्या होगा, एक्स टी प्लस टी ज़ीरो इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगा माइनस अल्फ़ा टी प्लस टी ज़ीरो। अब माइनस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें तो ई रेस टू माइनस अल्फ़ा टी इंटू ई रेस टू माइनस अल्फ़ा टी ज़ीरो, ये इक्वेशन बनेगा। ओके, बट हमने यहाँ गिवन है कि भाई ये जो फॉर्म है इसमें टी ज़ीरो तो इन्फिनिटी फॉर्म में जा रहा है, टाइम तो डिसाइड ही नहीं है, इन्फिनिटी फॉर्म में जाएगा क्योंकि यहाँ तक ज़ीरो ही नहीं हो रहा है। तो टी ज़ीरो इक्वल टू इन्फिनिटी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी ज़ीरो हियर, सो ई रेस टू माइनस अल्फ़ा टी ज़ीरो में क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो करो तो ई रेस टू ज़ीरो हो जाएगा, अरे सॉरी ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, वही ई रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी दैट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ मैं ज़ीरो रख दूँ तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो एक्स टी प्लस टी ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स टी प्लस टी ज़ीरो तो ज़ीरो हो रहा है और एक्स टी की वैल्यू है ई रेस टू अल्फ़ा टी, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मीन्स एक्स टी डज नॉट इक्वल टू एक्स टी प्लस टी ज़ीरो। सो द गिवन वेव फॉर्म इज नॉन पीरियोडिक। ओके, द गिवन सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक। ओके, so I hope you have clear with that. Now let's say one more example of that. Here some equation is given. Okay, so we have already defined the one more condition for a periodic. क्या दिया हुआ, state the whether following signal xt is a periodic or non periodic and define the reason for that. तो signal क्या दिया हुआ है, okay, ये signal दे दिया, equation is there. Okay, so xt equal to 2 cos 100 pi t plus 5 sin 50 t. So here I can write this in the form of this xt equal to, इसे हम x1 t बोल दें और इसको x2 t बोल दें।
ओके। सो x1 टी इक्वल टू अब हो जाएगा 2 cos 100 पाई टी और x2 हो जाएगा 5 sin 50 टी। ओके, ये हो गया। ओके, नाम दे देते उसको 3 and 4 इक्वेशन। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ डिसाइड दिस इक्वेशन x1 टी a cos ओमेगा 1 टी। सो हियर ओमेगा क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ओमेगा 1 100 पाई हो जाएगा। इसके साथ अगर कंपेयर करते तो इक्वेशन को ओके कंपेयर करेंगे तो ओमेगा 1 100 पाई हो जाएगा। ओके, तो ओमेगा 1 100 पाई, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पाई f1 ओके एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओके, वी कैन से तो 2 पाई बाई t1 100 पाई पाई तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो t1 की वैल्यू क्या आएगी 1/50 हो जाएगा, मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, सेम वे लेट्स से x2 की वैल्यू क्या आती है। सो x2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे साइन ओमेगा 2 टी के साथ, तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ तो ओनली 50 ही है। ओके, तो 50, सो फाइनली t2 क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 50 हो जाएगा, 2 पाई बाई 50। यार पाई कम इन द पिक्चर। ओके, सो तो हमें डायरेक्टली पता हो जाएगा कि पाई पिक्चर में आ रहा है। नाउ लेट टेक द रेशियो ऑफ t1 अपॉन t2। t1 की वैल्यू हमें पता है 1/50 एंड t2 की वैल्यू पता है 2 पाई बाई 50। तो 50-50 तो कैंसिल हो जाएंगे एंड बैलेंस बचेगा क्या 1/2 पाई। अब पाई इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, पाई रेशनल नंबर नहीं है हमें पता है। सो दिस रेशियो इज़ नॉट अ रेशनल नंबर वी कैन से। सो इंटीजर नहीं है वैल्यू ना पाई। ओके, सो इट्स अ नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म। अगर ये पाई की जगह खाली 1/2 पाई हो 1/2 होता सो इट्स अ पीरियोडिक वेवफॉर्म हो जाता। ओके, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि भाई रेशियो टू इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ओके, सो द गिवन सिग्नल इज नॉट अ पीरियोडिक। ओके, okay, one more example is here, you can say now it's given 3 signals is given, determine which of the following signals is periodic। ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, या क्या है इन दोनों का सम पीरियोडिक है। पहले दिया हुआ है x1 इक्वल टू साइन 50 पाई टी, सेकंड इक्वेशन है x2 टी इक्वल टू साइन 2 पाई टी, ये दूसरा सिग्नल दिया हुआ है। और तीसरा सिग्नल क्या है इन दोनों का सम x1 टी प्लस x2 टी। तो लेट्स से पीरियोडिक हो रहा है कि नहीं, तो टू फॉलोइंग फॉर द डिफाइन द signal is periodic or non-periodic, let's say the condition or satisfy or not. Now put the value x1 t equal to x1 t plus t0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं देखते हैं। Now put the value of t that is equal to t plus t0, so now I put the value of t plus t0। तो अगर हम डिफाइंड देखते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन करते तो ये वैल्यू मिल जाएगी एंड विच इज़ नॉट इक्वल फॉर्म, वो इक्वल फॉर्म में आ नहीं रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, दैट मीन्स नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। x1 टी इक्वल टू x1 t प्लस t0 नहीं हो रहा है। सेम थिंग हियर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x2 t प्लस t0 यहाँ रखते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी और ये x2 t नहीं है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है साइन 20 पाई टी, यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है साइन 20 पाई टी प्लस साइन 20 पाई t0। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। नाउ लेट्स से थर्ड वन इज़ दैट समेशन ऑफ दोस। अब दोनों का सम किया हुआ है दोनों की वैल्यू, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज़ 15 पाई साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है यहाँ 15 पाई, तो हमें यहाँ टी की वैल्यू मिल जाएगी फाइनली फ्रॉम दिस, तो t1 मिलेगा हमें, ये t1 है। सेम वे t2 भी हमें मिल जाएगा एंड दैट इज़ 1/10। इसको भी हम कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ दूसरी कंडीशन हमारे पास है टू सेटिस्फाई द सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट। इन दोनों का रेशियो t1/t2 सम इंटीजर वैल्यू होना चाहिए और रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इफ यू गॉन थ्रू दैट t1/t2, पुट द वैल्यू ऑफ t1 दैट इज़ 2/15 एंड t2 दैट इज़ 1/10 हियर, सो आई कैन गॉट
4/3, or 4 or 3 both are the some integer value, and given result is a rational number. Okay, so this is a periodic. So individual signal is non-periodic, but if we add or summation is there, and whatever signal is generated, that is a periodic, we can say. Okay, तो अब वो periodic signal मिल रहा है. Okay, so I hope you have clear with this कि भाई अगर कोई भी सिग्नल दिया हुआ है हमें, तो वो पीरियोडिक है कि नहीं, वो हमें किस तरह पता चलेगा. तो कुछ इस तरह हमें पता चल सकता है. ओके, नाउ ये सिग्नल पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक था. वन मोर सिग्नल्स इज देयर, इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल इज देयर. ओके, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी वन कंडीशन इज़ देयर और वन इक्वेशन इज़ देयर. ओके, कि भाई गिवन सिग्नल में ऑड कंपोनेंट है कि नहीं, कि इवन कंपोनेंट है कि नहीं. तो वन थियरी पोर्शन इज़ दैट, दैट थियरी पोर्शन इज़ नोन एज इवन ऑड डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्नल. सिग्नल में से इवन ऑड कंपोनेंट को आप डिकम्पोज कर सकते हो. ओके, सो बाय द यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, सो कोई भी इक्वेशंस है उसमें ऑर्डर इवन कंपोनेंट है, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा. तो एक्स टी इक्वल टू एक्स ई टी प्लस एक्स जीरो टी. ई दैट मीन्स इवन एंड ओ एक्स ओ इंडिकेट ऑड. ओके, एक्स ई इंडिकेट इवन and xo indicate odd, which I have written xe even component of signal xt and x0t odd component of xt. and the standard equation है xt equal to xet plus xot. okay, now let's put the value of t equal to minus t in this equation. तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस टी, यहाँ x माइनस टी कर देते हैं, एक्स ई माइनस टी प्लस एक्स ज़ीरो माइनस टी. ये इक्वेशन हमारे पास हो गया. ये इक्वेशन हमने बनाया है इसलिए कि हमें कंपोनेंट चाहिए एक्स ई एंड एक्स ओ. ओके, सो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया. नाउ लेट्स डिफाइन द इक्वेशन फॉर इवन पार्ट. ओके, फॉर अ इवन पार्ट. सो इवन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है कि भाई इवन सिग्नल्स किसे बोलते हैं, भाई एक्स ई टी इक्वल टू एक्स ई माइनस टी होता है, तो हम उसे इवन सिग्नल्स बोलते हैं. ओके, नाउ फॉर ऑड सिग्नल्स के लिए क्या है कि भाई एक्स ज़ीरो माइनस टी होगा तो माइनस एक्स ज़ीरो टी हो जाएगा, वो ऑड सिग्नल्स है. ओके, नाउ पुटिंग इक्वेशन 1.316 ये वाला इक्वेशंस एंड 1. ये वाला. ओके, इसमें अगर रखते हैं इन दोनों की वैल्यू एक्स ई एक्स ज़ीरो, इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखते हैं इस इक्वेशन में, तो मुझे एक्स माइनस टी मिलेगा. ओके, तो क्या होगा, एक्स माइनस टी अगर मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, ओके, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह मिलेगा, एक्स ई टी माइनस एक्स टी. ओके, इन दोनों की जगह मैंने ये दो वैल्यू रख दी है. ओके, तो मुझे कुछ इस तरह इक्वेशन मिला. नाउ एडिंग द इक्वेशन 1.314, इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करूँगा तो एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी, एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी. फिर क्या हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसल्ड हो जाएगा, तो बचेगा 2 टाइम्स एक्स ई टी बचेगा. अगर 2 को नीचे ले जाऊँ यहाँ, तो एक्स टी वाला इक्वेशन आ जाएगा मेरा. तो एक्स टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स ई टी इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट एक्स टी प्लस एक्स माइनस है. अब एक्स ई टी ये इक्वेशन क्या है, इवन कंपोनेंट का इक्वेशन है. इवन कंपोनेंट अगर आपको जानने हो इक्वेशन में, तो आपको पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, एंड यू कैन डायरेक्टली फाइंड. ओके, सेम थिंग टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ ऑड टर्म डिफाइन करने के लिए. ओके, तो इसको सब्सट्रैक्ट करो, किस में से, 1.318 को इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करो. ओके, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स ज़ीरो टी इक्वल टू 1/2 एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी.
ये इक्वेशन मिल गया। ओके, सो दिस टू आर द IMP1 वी कैन से, ये दो और ये दो। ये सिग्नल्स इवन है कि ऑड है वो पता चलता है, और सिग्नल्स में कितने ऑड टर्म है और इवन टर्म है, सॉरी ऑड टर्म है और इवन टर्म है, वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। So let's see one example so you are more clear with that. So let's say one example is given. Okay, क्या दिया हुआ है, find the even odd component of the following signal. एक सिग्नल हमें यह कितने 4 सिग्नल दिए हुए हैं, 4 सिग्नल्स हमें दिए हुए हैं। ओके, हमें फाइंड आउट करने हैं कि बेसिस इसमें इवन कंपोनेंट क्या होगा और ऑड कंपोनेंट क्या होगा। तो लेट्स से वन एग्जांपल xt इक्वल टू, ये वाला एग्जांपल हम पहले कंसिडर करते हैं, xt इक्वल टू ओके 1 + t + 3t² + 5t³ + 9t⁴। ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशन है इवन पार्ट फाइंड आउट करने के लिए। हमने अभी डिफाइन किया है कि भाई 1/2 इन ब्रैकेट 10, और ऑड पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। ओके, तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इवन पार्ट फाइंड आउट करते हैं इसमें से। अब इवन पार्ट का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है कि भाई x(et) = 1/2 इन ब्रैकेट xt। अब xt तो उन्होंने हमने दिया हुआ है, ये हमारा xt, तो वो तो वही हो जाएगा। बट x - t क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे x - t। तो पुट t = -t इन दिस इक्वेशन, तो क्या होगा, x - t = जो t है वहाँ -t करो। ओके, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। अब ये मिलेगा -t करोगे तो हमारे पास xt भी है, x - t भी है। ओके, t की जगह -t रखा हुआ है। ओके, तो ये t की जगह अगर -t करो तो -t हो जाएगा। ये t² है तो कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज स्क्वायर इज़ देयर। हाँ, यहाँ चेंज होगा, t³ है तो माइनस आएगा, t⁴ है तो प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ पुट दिस टू xt x - t इन दिस इक्वेशन। ओके, सो आई गॉट xt इक्वल, पहले हम xt रखेंगे फिर x - t। ओके, इसमें जो उड़ रहा है मतलब जो हो रहा है, लेट्स से 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये t कैंसिल हो जाएगा। ओके, सॉरी, ये t कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 3t² है और 3t² 6t² हो जाएगा, ये -5t² + 5t कैंसिल हो जाएगा, 90 94 18 हो जाएगा। सो आई गॉट दिस इक्वेशन वी कैन से। ओके ओके, अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो x 0 t मिल जाएगा। ओके, तो ये मुझे मिला इवन कंपोनेंट, इसमें से मुझे इवन कंपोनेंट मिल गया। ओके, और इवन पार्ट मिल गया। सेम वे फॉर ऑड टर्म ये हमारे पास इक्वेशन है। xt तो आपके पास है और x - t भी आपने फाइंड आउट किया है, तो पुट द वैल्यू ऑफ xt, तो 1 + t + 3t² + 5t³ + 9t⁴। अब माइनस है, माइनस, अब x - t की वैल्यू रखो, माइनस करोगे तो -1 प्लस हो जाएगा t, फिर ये -3t² हो जाएगा, ये प्लस 5t³ हो जाएगा और -9t⁴ हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली यू गॉट दिस। ओके, सो नाउ इट्स योर ऑड component or odd part of this signal. Okay, so here you can find you have find odd part and even part of the signals. Okay, so I hope you have clear। हमें यहाँ याद क्या रखना है, सॉरी, हमें यहाँ क्या याद रखना है, ये दो इक्वेशंस याद रखने हैं। ओके, इसमें xt तो हमें मोस्टली दिया हुआ होता है, -xt फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड, और वो किस तरह फाइंड आउट करोगे, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t = -t। तो आपको ये टर्म मिल गया, अब तो दोनों में रखना ही है और फाइंड आउट करना है। ओके ओके, दूसरा वाला देखते हैं कि भाई सेकंड में क्या है। ओके, सो सेकंड में भी कुछ इस तरह ही हो रहा है। पुट द वैल्यू, हमारे पास cos³ 10t है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है मैथमेटिकली। ओके, तो अब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा। ओके, तो ये वाला इक्वेशन कुछ t
वन प्लस टी क्यूब है इनटू ये कॉस क्यूब 10t की जगह हम क्या करेंगे डायरेक्टली गिवन है, मैथमेटिकल सॉल्व किया हुआ है. ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू हियर. एक्स टी तो अब आपको पता चल गया है कि भाई एक्स टी तो हमारे पास ही है. नाउ फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स माइनस टी. तो एक्स माइनस टी में क्या करोगे, टी की जगह माइनस टी रखोगे तो ये भी मिल गया. नाउ इवन टर्म फाइंड आउट करना है तो इवन टर्म का इक्वेशन हमारे पास ये है. नाउ पुट द वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखेंगे एक्स टी एंड एक्स देन एक्स माइनस टी. अगर आप सॉल्व करोगे ओके माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये दो बचेंगे. ओके, सो फाइनली 3/2 cos 10t प्लस 1/2 cos 30t बचेगा. ओके, सो दिस विल योर x even term. For find the x odd term, put the value of xt and x minus t. So xt x minus t. So finally I got this value and finally this is your last. This is this is your even term. Okay, simple mathematics is there. Okay, you have to just remember the equation only. कि भाई इवन टर्म फाइंड आउट करने का इक्वेशन क्या है और ऑड टर्म फाइंड आउट करने का इक्वेशन क्या है. ओके, so some more then we have third examples on the basis of that same thing. We have xt is given, so you have to first of all find the x. ये माइनस टी है, x माइनस टी इज देयर, ये x माइनस टी फाइंड आउट किया हुआ है. नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो यू कैन फाइंड द इवन टर्म एंड पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, you can find the odd term. Okay, so one more example is this. Okay, so only mathematics, simple mathematics is there. Okay, so I hope you have clear with this how to find the odd term, even term from the given equation. Okay, so then we have some power equation is there कि भाई what is the average power of the given square wave, given figure. इसका एवरेज पावर क्या होगा, तो ये पावर सिग्नल्स है उसका है. तो पावर सिग्नल्स का इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है. ओके, ये कुछ इक्वेशन है 1/t 0 to 2 x square into x square t into dt. अब यहाँ एक्स टी की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स टी क्या है, एक्स टी यानी ये एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है 1 है. ओके, अब रेंज कहाँ से आउटपुट कहाँ मिल रहा है, तो हमें पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है कब, जब सिग्नल इस तरह है, मीन्स 0 to t/2 में पॉजिटिव मिल रहा है और 0 to t/2 to t में नेगेटिव मिल रहा है. तो आई कैन राइट कि भाई 1 जब अप टू t/2 है और माइनस वैल्यू t/2 टू t है. नाउ पुट दिस इन दिस इक्वेशन, सो आई गॉट दिस 1/t 0 to t/2 मुझे 1 मिल रहा है एंड t/2 टू t माइनस टी मिल रहा है और स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये. ओके, अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल रहा है इक्वेशन. ओके, इंटीग्रेशन लिया हुआ है, सिंपली इंटीग्रेशन. ओके, टी का 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो टी मिल जाएगा इसका, और पुट द वैल्यू 0 to 2. सो फाइनली आई गॉट दिस एंड फाइनली इट्स दिस. So I hope you have clear with the examples. Okay, if you have a doubt then you can tell me, so we can add one more example and one more session on the basis of these examples. Okay, so I hope you have clear. So here now I am just ended the session. Here assignment is given for you, 1 or 2 example is given. Okay, so I hope you will do that. Okay, if you have query then you can tell me in our doubt session. Okay, thank you very much.